اسرائیل کے غزہ پر شدید فضائی حملوں میں بچوں سمیت کم از کم 200 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کر دی۔ صحادی کے وقت دیر البلح، خان یونس، رفح سمیت غزہ کے مختلف حصوں پر بمباری، 150 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ سٹی میں تابعین اسکول پر حملہ کیا گیا۔ المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مزید فوجی قوت کے ساتھ حملے کریں گے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا زمینی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق حملے سے متعلق امریکی صدر سے مشاورت کی گئی تھی۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کارروائی ترجیحی بنیاد پر کی جائے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کالعدم ٹی ٹی پی، کالعدم بی ایل اے اور اس کے مجید بریگیڈ کو طالبان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ شواہد ہے کہ جعفر ایکسپریس حملہ افغان پراکسیز کے ذریعے شروع اور مالی عنایت سے کیا گیا۔ یہ دہشت گرد حملے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے، پاک چین تعاون اور سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج صبح 11 بجے۔ عسکری قیادت موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ تحریک انصاف نے اجلاس میں شرکت سے قابل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی شرط لگا دی۔ رات گئے پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ۔ سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ جب تک بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کور کمیٹی کے بیشتر ممبران نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے لیے پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے ناموں پر بھی اعتراض کیا۔ کہا عامر ڈوگر کو سیاسی اور کور کمیٹی کی مشاورت کے بغیر نام نہیں دینے چاہیے۔ تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، زرتاج گل، عامر ڈوگر، علی محمد خان، بیرسٹر علی ظفر، حامد رضا اور دیگر کے نام بھجوائے تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے بڑی آل پارٹیز کانفرنس اور کیا ہوگی۔ اجلاس میں آرمی چیف اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور ان کی ٹیم بریفنگ دے گی۔ چیف جسٹس سے بھی شرکت کی درخواست کی جا سکتی ہے یا ان کی نمائندگی بھی ہو جائے تو وہ مذائقہ نہیں۔ اجلاس میں نواز شریف کی ذات سے متعلق کوئی کردار مقصود ہوا تو وہ حاضر ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا یہ پی ٹی آئی کی خام خیالی ہے کہ ان کے بانی کے سوا سب ہی زیرو ہیں۔ پی ٹی آئی جتنا دیر سے یہ بات سمجھے گی اتنا ہی اپنا نقصان کر چکی ہوگی۔ پی ٹی آئی کی تمام توانائیاں ریاست کے خلاف خرچ ہو رہی ہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد کون تھا جو انڈین میڈیا جیسی بات کر رہا تھا اور انہیں جواز فراہم کر رہا تھا؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قابل مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا۔ چیف وپ پی ٹی آئی عامر ڈوگر نے یہی مطالبہ لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے پاس پہنچے۔ کہا 3 رکنی پارلیمانی وفد کو بانی پی ٹی آئی سے ہدایات کے لیے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عامر ڈوگر کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری سے بھی ملاقات۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے سپورٹ کے بغیر کوئی کامیاب پالیسی نہیں بنائی جا سکتی۔ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی اور خارجہ پالیسی وہ بنے جسے بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہو۔ دوسرے T20 انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 2 وکٹ کے نقصان پر 36 رنز بنا لیے۔ حسن نواز 0 پر جیک ڈفی کا شکار ہوئے۔ ڈنیڈن میں بارش کے باعث میچ تاخیر سے شروع ہوا۔ میچ 15 اوورز تک محدود کر دیا گیا ہے۔ سلمان علی آغا 14 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے تور درہ میں آپریشن 3 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت کا ضلع خیبر میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ملک سے فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने PTI के 16 अरकान को आज दोबारा तलब कर रखा है। नोटिस जारी हैं। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और अब्बास वक़ास अकरम, ज़फ़र बक़ाली समेत दीगर भी शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। अलीमा खान को इससे कबल 14 मार्च को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुई थी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात जारी हैं। पंजाब के तमाम कॉलेजेस की क्लास रूम्स में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब का मुरासला जारी। कहा 7000 तालिब इल्म क्लास रूम्स में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और तालीम पर तवज्जो मुतासिर होती है। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अलाउंसेज और पे स्केल्स पर भी नजरसानी नहीं हो रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कहा सिर्फ मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ारत ख़जाना ने वज़ीर ख़जाना के असम्बली बयान की वजाहत करते हुए कहा कि वज़ीर ख़जाना ने मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी या तनख्वाहों से मुताल्लिक़ बात नहीं की। वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली तनख्वाहों से मुताल्लिक़ कोई ऐलान नहीं किया, न बयान दिया। वज़ारत ख़जाना ने तहरीरी तौर पर एक रुकनी असम्बली के सवाल पर ऐवान को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ारत ख़जाना ने ऐवान को आगाह किया कि फ़िलवक़्त अगले माली साल के लिए ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पे स्केल्स पर नजरसानी और तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आज़म से अमरीकी मल्टी नेशनल IT कंपनी के CEO की 4 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। गुफ्तगू में कहा कि वो नौजवानों को IT, AI और दीगर जदीद तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहे हैं। IT शोबे में $25 अरब की बरामदात के हदफ के हुसूल के लिए IT कंपनीज़ को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अमरीकी वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान का IT शोबा सरमायाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू है। बारखान के इलाके गामबर्ग में सड़क की तामीर करने वाली कंपनी पर हमला। ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने तामीराती कंपनी की मशीनरी को आग लगा दी। बलूचिस्तान हुकूमत का लेविस फोर्स में काउंटर टेररिज्म विंग के क़याम का फैसला। DG लेविस का कहना है कि इक़दाम का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मज़ीद मौसर बनाना है। विंग ऑपरेशंस में दीगर फोर्सेस के साथ ताउन करेंगे। क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 830 कैमरों में 80 गैर फ़ाल हैं। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक ये कैमरे सितंबर 2024 में एक एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। तोड़े गए कैमरों की मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। महकमा खजाना ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए जारी किए। नशे के आदी और नामालूम अफराद भी कैमरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक H में रिहायशी इमारत की 8वीं मंजिल से गिरकर लड़की जाँ बाक। अहले खाना के मुताबिक लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। तफ्तीश जारी है। डालमिया में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का मुकामी ओहदेदार कत्ल। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर इकबाल ने कहा है कि मकतूल फाइक जराम पेशा अफराद के खिलाफ था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय वज़ीर आज़म के रिमार्क्स गुमराह कुन हैं। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की यकीन दहानियों के बायस हल तलब है। भारतीय बयानात कश्मीर में होने वाले मज़ालिम को छुपा नहीं सकते। भारत दूसरों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने की बजाय अपने अमल पर खुद गौर करे। हम मसला कश्मीर पर हमेशा तामीरी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की वकालत करते आए हैं। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया दो तरफ़ा माहौल को ख़राब करता है। भारतीय बयानात अमन और ताउन के इम्कानात को रोकते हैं।
मुगल शहंशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने के लिए भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर में नागपुर में इंतहा पसंदों के मुजाहरे, हिंदू मुस्लिम कशीदगी फैल गई। नागपुर में कई गाड़ियां जला दी गईं, मकानों पर पथराव, कई अफराद जख्मी, पुलिस ने 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। इलाके में दफा 144 नाफिज। कांग्रेस रहनुमा हारिश वर्धन ने फसादात का जिम्मेदार रियासती हुकूमत को करार दे दिया। कहा कैरो से रियासती वज़रा इश्तियाल अंगेज लोगों को उकसाने वाले बयानात दे रहे हैं। चीनी की कीमतों का आज कोई हल निकल आएगा। चीनी की कीमत सारी उम्र के लिए मुकर्रर नहीं हुई। मशरूब साज कंपनीज महंगी चीनी खरीद रही हैं तो किसी को क्या तकलीफ है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर की बातचीत। कहा चीनी बरामद की मशरूत इजाज़त सिर्फ पिछले सीजन के लिए थी। आम गरीब आदमी को चीनी 130 रुपये किलो फराहम की जा रही है। चीनी की एक्स मिल कीमत 160 और होल सेल कीमत 165 रुपये किलो है। चीनी की 80% फरोख्त कमर्शल है, सिर्फ 20% नॉन कमर्शल सेल है। इस बार गन्ने के काश्तकार को 750 से 750 रुपये रेट मिला है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज के मुताबिक कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेनों की बहाली का फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि 5 साल में 30,000 नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाएंगे। बैरून ममालिक जाने वाले नौजवानों को वीज़ा देने की तकरीब से खिताब। कहा बेरोज़गार नौजवान रियासत से मायूस हो रहे थे, हम अब बलोचिस्तान की यूथ को रोज़गार के लिए बैरून ममालिक भिजवा रहे हैं। जून तक 2300 जवानों को बैरून ममालिक भिजवाएंगे। नौजवान नस्ल इन लोगों के हाथ ना लगे जो मुसाफिर और शहरियों को मारते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि एमक्यूएम अपने इत्तेहाद और काम की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर थी। आने वाले दिनों में वो वक्त फिर वापस आएगा। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान अनकरीब मुआशी तौर पर ऊपर आने वाला है। सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। नैब जब पीछे पड़ती है तो एक मोटरसाइकिल पर पड़ जाती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब। कहा रेलवे पुल और जहाज गायब हो जाते हैं लेकिन नैब को नजर नहीं आता। फैसलाबाद में 2 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर दर्जी की दुकान लूट ली। डाकू सूट 20,000 रुपये और एक मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। ख़वातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में नौकरी से निकाली गई खातून को वालिद की जगह पर नौकरी का अहल करार दे दिया। एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ था कि खातून की शादी हो चुकी है और वालिद की जगह नौकरी की अहलियत नहीं रखती। रेप या शादी के बगैर पैदा हुए बच्चों की कफालत उनके बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। बच्ची के खर्चे के दावे से मुतालिक केस में जस्टिस अहमद नदीम अरशद का तहरीरी फैसला। खातून ने बच्ची के खर्चे के लिए बायोलॉजिकल वालिद के खिलाफ दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3,000 रुपये माहाना खर्चा मुकर्रर किया था। फैसले के खिलाफ मुतालिका शख्स लाहौर हाई कोर्ट आया था, जिस पर अदालत ने खर्चे का जिम्मेदार उसी को करार दिया और केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो शिकारपुर में इंतकाल कर गए। 55 साला नसीर सुमरो कई माह से फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला थे। नसीर सुमरो की नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। नसीर सुमरो का कद 7 फुट 9 इंच था। वज़ीर आज़म का नसीर सुमरो के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के लिए बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। घोटकी में रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब पर हमले का मुकदमा दर्ज। साबिक एमपीए सरदार शहरियार शर और उनके बेटे समेत 7 मुलजिमान नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई है। पुलिस के मुताबिक घात लगाए अफराद ने जाम मेहताब के काफिले पर फायरिंग की थी। हमले में जाम मेहताब हुसैन महफूज रहे थे, ताहम उनका एक साथी जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। घोटकी में रुकने
सरगोधा में नवासे की जायदाद जालसाजी से हथियाने वाले नाना और उसका साथी गिरफ्तार। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम ने पड़ोसी और स्टैम्प फरोश से मिलकर नवासे की 2 केनाल अराजी हथिया ली। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर नाना समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जमीन असल मालिक को वापस। पेंटागन ने कहा कि यमन में मकासद के हुसूल तक मौलिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा। यमन पर इब्तदाई फ़ज़ाई हमलों में 30 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। अहदाफ में हूसियों के तरबियती मराकज़ और सीनियर ड्रोन माहिरीन शामिल हैं। हूसी ये कह के कि अमरीकी हमले रोक सकते हैं कि वो हमले नहीं करेंगे। यमन पर फ़ज़ाई हमले लामुतनाही है, ना ही इसका मकसद रिजीम चेंज है। अमेरिका के यमन पर फ़ज़ाई हमलों के बाद हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी। कहा मज़ीद हमलों या रद्द अमल का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। हूसियों की तरफ से किसी भी हमले को ईरान की तरफ से किया गया हमला समझा जाएगा। नताइज ईरान को भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब का सलामती काउंसिल को ख़त। कहा अमरीकी सदर और दीगर हुकाम ने इश्तियाल अंगेज़ बयानात में ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। बयानात में ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी गई है। ईरान यमन में हथियारों की पाबंदी से मुतालिक UN करारदादों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। अमेरिका के मकतूल सदर कैनेडी से मुतालिक तमाम खुफिया दस्तावेज़ आज जारी की जाएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है दस्तावेज़ का ये ख़जाना बहुत दिलचस्प है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि 80,000 सफ़ात पर मुश्तमिल इन फाइल्स में है क्या। सदर कैनेडी को अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में 22 नवंबर सन 1963 में गोली मार दी गई थी। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में वाक़ जॉन F कैनेडी सेंटर का दौरा किया। ट्रंप ने हुक्म दिया कि जारी की जाने वाली दस्तावेज़ में कोई चीज़ कम न की जाए। सदर ट्रंप इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर चुके हैं। यूक्रेन डील। अमेरिका ने क्राइमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका गौर कर रहा है कि क्राइमिया को रूस का हिस्सा बनाने के लिए UN में खुद मुतालबा करे। ट्रंप कहते हैं यूक्रेन जंग बंदी मुआहदे से मुतालिक ज़्यादातर उमूर पर इत्तेफाक कर लिया गया है। रूस के सदर पुतिन से फ़ोन पर बात के मुंतज़र हैं। ट्रंप इंतजामिया ने सरकारी फंडिंग से चलने वाले अमरीकी खबर रिसा इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन की बरतरफियाँ शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक VOA के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफियों की ईमेल मौसूल हो गई हैं। ईमेल्स में मुद्दत मुलाजमत 31 मार्च से ख़त्म होने की इतला दी गई है। ज़्यादातर बरतरफ मुलाजमीन वॉइस ऑफ अमेरिका की गैर अंग्रेज़ी सर्विसेज में काम कर रहे थे। सऊदी हुकूमत ने जिस्म फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 11 खवातीन समेत 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की अखबार के मुताबिक दर्जनों गैर मुल्की शहरियों को मसाज पार्लर्स में गैर अखलाकी जराइम के सिलसिले में और औरतों और बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करने पर गिरफ्तार किया गया। पिछले माह सऊदी पुलिस ने एक मसाज पार्लर में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर 4 गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार किया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक ड्राइवर ने दुकान से गर्मा गर्म कॉफ़ी खरीदी जो उसके जिस्म पर गिर गई। ड्राइवर ने कॉफ़ी फरोश कंपनी पर मुकदमा दायर कर दिया और 5 करोड़ अमरीकी डॉलर्स यानी तकरीबन 14 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जीत ली। अदालत ने कॉफ़ी कंपनी को मुतासिरा शहरी को हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। गर्म कॉफ़ी गिरने से शहरी को 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ा था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की वज़ीर आला सिंध के हमरा कराची के बाग इब्न कासिम आमद। बिलावल भुट्टो ने बाग इब्न कासिम में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ पैडल मैच खेला। बिलावल भुट्टो का बाग इब्न कासिम पार्क में बनाए गए खेलों की सरगर्मियों पर खुशी का इजहार। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में पाकिस्तानी नैयाद मकामी क्लब क्रिकेटर जुनेद जफर खान क्रिकेट मैच के दौरान चल बसे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एडिलेड में मैच शदीद गर्मी में खेला जा रहा था। जुनेद जफर ने
हेड वेव के दौरान पहले 40 ओवर्स फील्डिंग की, फिर 7 ओवर्स बैटिंग की, जिसके बाद वो ग्राउंड में ही गिर गए। जुनैद को फौरी तिबी इमदाद दी गई, लेकिन वो जांबर ना हो सके। HPL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी का टूर जारी। ट्रॉफी आज और कल मुल्तान का सफर करेगी। ट्रॉफी पहले शाह रुकन आलम के मज़ार, फिर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ले जाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ ट्रॉफी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में नुमाइश के लिए पेश की गई। PSL के CEO सलमान नसीर टेस्ट क्रिकेटर फ़खर ज़मान के हमरा ट्रॉफी लेकर पहुंचे। इस मौके पर लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना, समीन राना, यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। ट्रॉफी देखकर शायकीन का जोश खरोश दीदनी था। और नेशनल T20 कप क्रिकेट टूर्नामेंट में फाटा रीजन ने आज़ाद कश्मीर को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। आज़ाद कश्मीर ने 149 रन बनाए। फाटा रीजन ने हदफ 18वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फैसलाबाद में खेले गए मैच में कराची ब्लूज ने कोयटा रीजन को 7 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।